Bismillahirrahmanirrahim. Now we will talk about 9.3.2 and the topic is energy and momentum in electromagnetic waves. Let we assume that a plane wave is traveling along z-axis and this electromagnetic waves carries energy in the form of electric and magnetic fields. Now the expression for this traveling wave can be written in terms of electric and magnetic fields. E is equal to E naught cos kz minus omega t and B is equal to B naught cos kz minus omega t. E is along I and B is along J as are required for a plane wave. Means you know that a plane wave, for a plane wave, electric and magnetic field are not only mutually perpendicular but are also perpendicular to the direction of wave propagation. Now this wave carries energy in the form of electric and magnetic field, and how much energy is carried in the form of electric and magnetic field can be determined by the energy densities of electric field and magnetic fields. So the energy density or energy per unit volume carried by this wave will be equal to energy density of electric field and energy density of magnetic field. Here UE and UB both represent the energy density by electric field and energy density by magnetic field. Or energy density for electric field is equal to 1 by 2 epsilon naught into E square. 1 by 2 epsilon naught into E square if the wave is traveling along free space. मीन हम assume करते हैं wave जो free space में energy is being carried by electric and magnetic field, and magnetic field density, energy density will be equal to 1 by 2 B square over mu naught. So these two energies constitute to the total energy that is carried by this electromagnetic plane wave. We also know that electric and magnetic field are related by each other, where B is equal to 1 over C into E for electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आपके पास है तो उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो इस तरह से रिलेटेड हैं. तो यहाँ से आप इक्वेशन 1 में अगर आप लिखते हैं तो U विल बी इक्वल टू 1 by 2 epsilon naught E square plus 1 by 2 B square over mu naught, and can be written as 1 by 2 epsilon naught E square plus 1 over mu naught B square को आप यहाँ से लिखेंगे 1 over C square into E square, as C square is equal to 1 over mu naught epsilon naught under root, so it can be written as 1 by 2 epsilon naught E square plus 1 by 2 epsilon naught E square. Here is the electric contribution, here is the magnetic contribution, and we can see that both contribution are same. जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी उतनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में, बोथ एनर्जी आर इक्वल, और टोटल एनर्जी जो आपके पास आएगी एनर्जी डेंसिटी that will be equal to epsilon naught into E square. Here is the energy density. Let we call it equation 5. Now where this energy is being stored or is being transferred, this energy is being moving from source to destination, or let we find this flow rate or energy density rate. That as this wave is traveling along z-axis, it passes through a area A and transports some energy as it moves through this area. So let we assume that at time t wave is at this surface, and after time t plus dt it reach at the outer surface, so that energy transported, or so that it travels a distance dl in a time dt, where dl will be equal to c into dt, because electromagnetic wave is traveling with the speed of light.
so dl will be equal to c into dt, and transport energy du, नो कैपिटल U हम यहाँ पे देखेंगे एनर्जी इन दिस टाइम, सो डैट कैपिटल D कैपिटल U स्मॉल एनर्जी, डैट मीन जब ये वेव जो है यहाँ से इस फेस से इस फेस तक आएगी तो इस वॉल्यूम में जिसका एरिया A है आपके पास, जब इस एरिया में से वेव पास करेगी तो इस वॉल्यूम में कुछ एनर्जी ट्रैप हो जाएगी। वो एनर्जी कितनी ट्रैप होगी dt टाइम में हम वो एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, और ये एनर्जी आपके पास होगी एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और एनर्जी डेंसिटी आपने ये फाइंड आउट की है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू इसका वॉल्यूम जो आपके पास आएगा ए सी इनटू डी टी, so that here will be the energy stored or transported in time dt in a volume AC dt. From here we can find the energy transported per unit time. तो एनर्जी ट्रांसपोर्टेड, हम इसको ज़रा कैपिटल यू, इसको पहले वाले को आप स्मॉल यू कर लें और बाद वाले को आप कैपिटल यू लिखें। कैपिटल यू per unit time will be equal to epsilon naught E square A into C. This will be the energy per unit time transported through this area in a volume AC dt. So that energy transported per unit time per unit area will be equal to epsilon naught C E square. This is the energy transported per unit time through a surface A and is known as energy flow rate. एनर्जी फ्लो रेट, कि आपका जो एनर्जी फ्लो रेट है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो एनर्जी फ्लो रेट को अगर हम यहाँ पे E आपके पास, इसको फर्दर आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट E इंटू E over C into C square, and this can be written as 1 over mu naught into E into B. तो एनर्जी फ्लो रेट आपके पास आएगा dt ओवर du ओवर dt एंड विल बी इक्वल 1 ओवर म्यू नॉट E इंटू बी। याद रखिएगा दोबारा से, ये आपके पास एनर्जी है, एनर्जी, और ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी है, ये वाली एनर्जी डेंसिटी है यहाँ तक। Now this energy is being transported along the wave in direction of z axis, as E cross B denotes the energy direction of wave propagation, so it can be written as E cross B or 1 over A du over dt with direction z, mean propagation of direction of wave, and this energy flow rate is known as पॉइंटिंग वेक्टर। एनर्जी फ्लो रेट मीन पावर पर यूनिट एरिया, तो इसको आप S से डिनोट करते हैं, S वेक्टर से आपके पास। S वेक्टर आपके पास आ जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर और द एनर्जी फ्लो रेट। Now we will talk about energy flow rate and then we will talk about momentum density. The momentum density, you know that according to de Broglie, momentum carried by a photon will be equal to h by lambda, as the energy and moment we can see that as photon carries energy, then it also carries some momentum. Here wave are carrying energy in form of photons, so there will be momentum that will be carried by these waves, and this can be written as P is equal to E by F into lambda, and this will be equal to E by C. So this will be the momentum carried by these waves. So as the wave travels through this region, through this volume, it transports a small momentum dp that will be equal to, यहाँ पे E को आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखिएगा, आप इसको एनर्जी लिखिएगा, अब इसको En कर दें एनर्जी, तो आप तो एनर्जी आपने du लिखा हुआ है और du by c, this will be the small momentum transported in this volume, and this will be equal to epsilon naught E square
यहाँ पे आप इस इक्वेशन को, ये 4 इक्वेशन है या 4a आप इसको कह दें, आप इस इक्वेशन से ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए सी डी टी, और मोमेंटम ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इनटू सी। दिस इज़ द मोमेंटम ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट टाइम। और इससे पहले एक मिनट, इससे पहले आप देखते हैं मोमेंटम ट्रांसपोर्टेड विल बी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ओवर सी आपके पास आ जाएगा। और ये आपके पास आएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इनटू डी टी। और फर्दर आप इसको लिख सकते हैं ए सी डी टी ओवर सी स्क्वायर। इट मीन्स डैट हेयर इज द मोमेंटम टर्म, वॉल्यूम टर्म, then it must be momentum density, so the product of volume and momentum density will give the momentum। तो आप इस momentum density को लिखेंगे g के साथ, where g will be equal to epsilon naught e square over c square, and it can be further written as 1 over c into epsilon naught e square over c, and this is equal to 1 over c into s, magnitude of pointing vector। ये पॉइंटिंग वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल होगी ये। एज द पॉइंटिंग वेक्टर हैव द डायरेक्शन, सो इट कैन बी रिटन एज आल्सो इन वेक्टर फॉर्म। तो ये आपके पास फर्दर इसको आप लिख सकते हैं जी को वेक्टर के साथ, और ये वेक्टर जो आपके पास जी वेक्टर को आप लिख सकते हैं 1 over c इंटू एस वेक्टर। तो दिस इज द मोमेंटम डेंसिटी। सो मोमेंटम डेंसिटी इन वेक्टर नोटेशन विल बी इक्वल टू 1 by c इंटू एस। लेट वी कॉल इट आवर इक्वेशन 6। एज momentum is being transferred time by time dependent on time, then from this equation we can find the rate of change of or transfer of momentum। तो रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफ़र, उससे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ एस क्या होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ जी क्या होगी। बिकॉज साइनोसाइडल फील्ड है तो हम यहाँ पे एवरेज की बात करते हैं। तो वी नो डैट यू एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, और ई की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एनर्जी डेंसिटी। दोबारा से आप एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी U is equal to epsilon naught E square। So put value of E from 1, and we will have U is equal to epsilon naught, और E square का मतलब E dot E, and this will give you E naught square cos square kz minus omega t। If you take its average value, then average value will be equal to epsilon naught E naught square। E naught is the amplitude, and cos square की जो average value आपके पास आती है ये 1/2 होगी, and this will be equal to 1/2 epsilon naught E naught square। And here is our equation 7, average energy density। Next we will find the average value of pointing vector। तो पॉइंटिंग वेक्टर की जो एवरेज वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1 over म्यू नॉट एवरेज वैल्यू ऑफ ई क्रॉस बी। एज ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो ई क्रॉस बी विल बी ई बी, और यहाँ से आप फिर ई और बी को दोनों को जब आप लिखेंगे ई की फॉर्म में तो आपके पास आ जाएगा 1 over म्यू नॉट सी एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर।
तो ये एवरेज आप फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, जैसे कि हमने पहले फाइंड आउट किया। तो ये आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी, इसको आप बोल दें लेट इक्वेशन 8। तो हियर इज़ द एवरेज वैल्यू, ये एवरेज साइन है ये आपके पास जो है ना, दिस इज एवरेज साइन, एवरेज साइन है ये, एवरेज ओवर ए टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड पे हम इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वी कैन फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ जी, डेट विल बी इक्वल टू 1/c इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ एस, और ये आपके पास आ जाएगा, ये भी आप फाइंड आउट कर लीजिएगा एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू ऑफ जी को आप यहाँ पे लिख दें, डेट विल बी इक्वल टू 1/c एवरेज वैल्यू ऑफ एस, एंड डेट विल बी इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और इनटू जो उसकी डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। तो ये आपके पास जी की एवरेज वैल्यू है, मोमेंटम डेंसिटी, मोमेंटम डेंसिटी की एवरेज वैल्यू आपके पास आएगी। हियर इज द मोमेंटम डेंसिटी, मोमेंटम डेंसिटी, मोमेंटम डेंसिटी आप जी को बोलते हैं, मोमेंटम डेंसिटी। सो एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम डेंसिटी है, सो आपने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट वी विल फाइंड दी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आपके पास है एवरेज पावर पर यूनिट एरिया, एवरेज पावर पर यूनिट एरिया। तो मोमेंटम डेंसिटी आपके पास देखते हैं है क्या। तो एनर्जी इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, डेंसिटी इज एवरेज पावर पर यूनिट एरिया। नो एवरेज पावर पर यूनिट एरिया आपके पास है क्या, एस। आपने देखा एस है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज द पावर पर यूनिट एरिया, दिस विल बी इक्वल टू द एस, एवरेज वैल्यू ऑफ एस। सो एवरेज वैल्यू ऑफ एस आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, डेट वाज इक्वल टू 1/2 c एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर। तो हियर इज द इंटेंसिटी और पावर पर यूनिट एरिया। Now as the wave falls on a surface, then it transfer momentum to that surface. If this surface absorb this wave, then the momentum will be transferred to this wave, and momentum transferred in a time dt, in a time dt is given as dp is equal to du over c, and is equal to momentum transfer per unit time will be equal to epsilon naught e square a, और c को आप c से कैंसल आउट कर देंगे। और मोमेंटम ट्रांसफ़र जो आपके पास होगा, मोमेंटम ट्रांसफ़र को आप फर्दर यूं भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने पहले देखा। So this will be the momentum transfer through this wave if the wave is being absorbed by a absorber. Or momentum transfer per unit time, change in momentum per unit time is known as force. It means that force transported by this wave will be equal to force, force को आप लिखेंगे dp over dt, फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए अगर आप किसी मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के करीब लेकर आते हैं तो फील्ड की वजह से फोर्स है, चार्ज को चार्ज के करीब लाएंगे तो फील्ड की वजह से फोर्स है। तो अगर किसी एब्जॉर्बर सरफेस पे ये वेव एब्जॉर्ब होगी तो इट विल ट्रांसपोर्ट द फोर्स, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया, एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर और द प्रेशर ट्रांसपोर्टेड will be equal to average force per unit area and is the radiation pressure. एवरेज फोर्स अगर देखें तो आपके पास एवरेज फोर्स होगी एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम, और एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए आप यहाँ से देखते हैं
dp/dt average value into 1/a, or average value, this will be equal to epsilon naught e square a into 1/a. This will be equal to epsilon naught e square average value, and this will be equal to epsilon naught 1/2 e naught square. जैसा कि हम पहले भी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 ई नॉट स्क्वायर के इक्वल होगी. तो दिस विल बी द रेडिएशन प्रेशर ट्रांसपोर्टेड टू ए ऑब्जर्वर सरफेस इन ए टाइम dt. और इसको आप फर्दर लिख सकते हैं I/c रेडिएशन प्रेशर को, क्योंकि I की वैल्यू आपके पास है 1/2 c एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट c ई नॉट स्क्वायर ओवर c, एंड दिस विल बी इक्वल टू I/c. ये इज आप इक्वेशन 10. तो देखिएगा, अगर ऑब्जर्वर सरफेस है तो ऑब्जर्वर सरफेस पे आपके पास जो रेडिएशन प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू. तो प्रेशर ऑन ऑब्जर्वर सरफेस. और अगर रिफ्लेक्टर है तो रिफ्लेक्टर में जो प्रेशर है ये डबल होगा, क्योंकि एक दफ़ा ऑब्जर्व होगा फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में वेव को ट्रैवल करना होगा. तो दोनों केसेस में जो मोमेंटम चेंज होगा, देखिएगा मोमेंटम इनटू द सरफेस एंड मोमेंटम आउटवर्ड द सरफेस. तो फाइनल जो टोटल मोमेंटम होगा दैट विल बी द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम या फाइनल प्रेशर या जो चेंज इन प्रेशर विल बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर. तो दोनों केसेस में जो आपके पास है ये जो प्रेशर है ये ऐड होगा, और दोनों ही दफ़ा प्रेशर जब सरफेस पे ही रहेगा, एक दफ़ा ऑब्जर्व करने के लिए, दूसरी दफ़ा रीट्रांसमिट करने के लिए. तो दिस विल बी द डबल ऑन अब रिफ्लेक्टर. और ट्रांसमीटर के लिए कि अगर ये वेव किसी सरफेस पे हिट हो रही है और हिट होने के बाद ट्रांसफ़र हो रही है, तो डैट विल नॉट ट्रांसपोर्ट एनी एनर्जी और एनी मोमेंटम टू दिस सरफेस. होपफुली यू विल लर्न दिस. और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो काइंडली आप इसको दोबारा देख लीजिएगा कि ऑन ए रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर में आपके पास जो रेडिएशन प्रेशर है दैट विल बी दी 2 ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर. तो ये डबल होगा रेडिएशन प्रेशर. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.